now here are the options. Everybody gets nervous during, despite, in place of, or along. Which one is the correct answer? Yes. Okay. Everybody gets nervous during exams because exam is a period. That's why it's during. The right answer is during. Very good. Okay. चलो अब आगे बढ़ते हैं. This is ... imagination. इसके ऑप्शंस हैं beside imagination, beyond my imagination, behind और between. अब यहां से राइट आंसर बताने हैं आपको. यस, हर्षवर्धन इज सेइंग beyond. Yes, the right answer is beyond my imagination. क्योंकि beyond का मतलब होता है के पार कहीं दूर. One more question. I don't know much cars. From, against, about or above. यहां राइट आंसर क्या है? From, against, about और above. ऑप्शंस लोग दे रहे हैं. वेरी गुड. अबाउट. सी, एवरीबडी गेट्स नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम्स बिकॉज ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी समय अंतराल के दौरान. यस, फर्स्ट वन. सेकंड, वी मस्ट नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग. वाइल मतलब किसी काम को करने के दौरान. यस. एंड अबव 18 ईयर्स कैन वोट. किसी लेवल से ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं? अबव, है ना. और दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड लिमिट. सो बियॉन्ड मतलब के पार, दूर. और आई डोंट नो मच अबाउट कार्स. ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हुए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. मिस्टर गुप्ता इज ऑन लीव ... a week. इसका आंसर बताइए. मिस्टर गुप्ता इज ऑन लीव ... a week. ऑप्शंस आर फॉर अ वीक, from a week, by a week or of a week. Mr. Gupta is on leave. The right answer is for a week. है ना? Option A is the right answer. Next. This tool is very useful. Boring holes. For, of, by or to. Now let me know. Gagan Parmar, the answer of 7th question. What should be the right answer? 7th. This tool is very useful for. The right answer is for. Next question. I congratulated her. To her success, of her success, for her success or on her success. Okay. Now we'll move to the next. I congratulate her. The right answer is on. Answer of question 8th is on. I congratulated her on her success. Now, you are responsible. You are responsible ... for on your mistake. Answer right क्या आएगा? You are responsible for your own mistakes, on your, about or of your own mistakes. The right answer is for. Now, 10th. There is a bridge on the river, over the river, up the river or above the river. Which one is the correct one? See, इसका आंसर था on. This one is A and this one is B. First question है
Mr. Gupta is on leave for a week. This tool is very useful for boring holes. I congratulated her on her success. You are responsible for your own mistakes, and there is a bridge over the river. Yes, next पे चलते हैं. Next थोड़ा इसको रिप करते हैं. हाँ, next sentence. Next question है, he has been waiting there. अब बताइए, since सही आंसर है, by है, at है या for है? He has been waiting there since, by, at or for. He has been waiting there. ठीक है, एक साथ पांचों के आंसर देखेंगे. आप ऑप्शन लिखते जाइए. किसी ने लिखा फॉर, हर्षवर्धन कह रहा है सिंस, है ना, गगन कह रहा है फॉर. समझते हैं. नेक्स्ट, ही हैज बीन सिक द डे ही अराइव्ड. इसका राइट आंसर फ्रॉम द डे ही अराइव्ड, सिंस, एट और फॉर. यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, she has been learning English years. Of years, since years, at years or for years. Next, he is known to me. मतलब मैं उसे जानता हूं. Childhood, to childhood, since childhood, by childhood या from childhood. 15th, she has been ill on so many days, since so many days, by so many days or for so many days. चेक करते हैं. He has been waiting there. अब चूंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, किसी निश्चित समय से हम बात कर रहे हैं, तो यहां आंसर आएगा सिंस. ही हैज बीन वेटिंग देयर सिंस 5 o'clock, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी. ही हैज बीन सिक द डे ही अराइव्ड. फिर से यहां पॉइंट की बात है कि जिस दिन से वो यहां आया है तब से बीमार है, तो फिर से इसका आंसर आएगा सिंस. शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश. वो इंग्लिश सीख रही है ईयर्स. अब ईयर्स एक टाइम ड्यूरेशन है, एक टाइम पीरियड है, इसलिए इसमें आंसर आएगा फॉर. ही इज नोन टू मी. ये फिक्स्ड वाला मामला है. हमेशा हम कहते हैं सिंस चाइल्डहुड, या ऐसा मान लें कि चाइल्डहुड को हमने एक पॉइंट माना तब से अभी तक, तो ही इज नोन टू मी सिंस चाइल्डहुड. एंड शी हैज बीन इल. अब ये सो मेनी डेज क्या है? एक टाइम इंटरवल है, एक समय अंतराल है. तो समय अंतराल के लिए हम लगाएंगे फॉर. इसको ढंग से समझ लीजिए. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, ही हैज बीन वेटिंग देयर सिंस 5 o'clock. ही हैज बीन सिक सिंस द डे ही अराइव्ड. शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स. ही इज नोन टू मी सिंस चाइल्डहुड. एंड शी हैज बीन इल फॉर so many days. चलिए, इसको भी हम रब करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डॉट 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 1985. ऑप्शन से फ्रॉम, इन, फॉर और सिंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. माई फ्रेंड हैज बीन इल long time, for long time, on long time, since long time या in. What have you been doing? On, since, from या for. I haven't done any work for a month.
And 20th question is, he is known to me, again during, by, since or from. अब देखो उसको समझ लेते हैं. She has been working in this organization. अब ये 1985 जो लिखा है ये पॉइंट है, तब से वो काम कर रहा है वहां पर, है ना, यह काम कर रही है. तो चूंकि ये पॉइंट दिया है इसलिए मैं कहना पड़ेगा सिंस 1985. माई फ्रेंड हैज बिन इल. मेरा फ्रेंड कैसा है? बीमार है. अब ये लॉन्ग टाइम एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है. जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो लगाना पड़ता है फॉर. वॉट हैव यू बीन डूइंग यस्टरडे. अब यस्टरडे क्या है? यस्टरडे एक पॉइंट है, तब से लेके अभी तक. जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमें लगाना होता है सिंस. तो आएगा सिंस यस्टरडे. आई हैवंट डन एनी वर्क अ मंथ. अ मंथ एक ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन के लिए हम लगाते हैं फॉर. ही इज नोन टू मी, ये हमने अभी देखा था, सिंस चाइल्डहुड. ही इज नोन टू मी सिंस चाइल्डहुड. यस. चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, द क्लर्क इज. अब इसका आंसर बताइए. इन, ऑन, एट या टू. प्लीज कट द केक 4 pieces. Into, by, from, in. Twenty-third. The boy was absent. The school. In the school, या off school, from school or with school. 24th. I always warn you, your enemies. From your enemies, by your enemies, against or of. There are 4 options. इसमें से we have to choose the right answer or correct answer. The next. Keep the child, the fire. From, by, of or of. Question number 21 is clerk is. इसका आंसर कुछ लोगों ने कहा ऑन, है ना, किसी ने कहा था एट. राइट आंसर है एट. डेस्क मतलब टेबल होती है, तो क्लर्क अपने टेबल के साथ बैठता है, चेयर के ऊपर बैठता है ना. तो इसका राइट आंसर आएगा द क्लर्क इज एट हिज डेस्क. सेकंड. प्लीज कट द केक. लोग इनटू आंसर बता रहे हैं पर राइट आंसर है इन 4 pieces. इनटू यहां गलत है, राइट आंसर है इन 4 pieces. द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल. आई ऑलवेज वॉर्न यू. वॉर्न मतलब वार्निंग देना. तो आई ऑलवेज वॉर्न यू, हमेशा वार्निंग किसी के अगेंस्ट दी जाती है, तो अगेंस्ट योर एनिमीज. एंड कीप द चाइल्ड ऑफ द फायर. ऑफ का मतलब है कहीं से दूर हटना, दूर रखना. तो कीप द चाइल्ड ऑफ द फायर. इसको ठीक से देख लीजिए, सारे आंसर समझ लीजिए. द क्लर्क इज एट हिज डेस्क. प्लीज कट द केक in 4 pieces. The boy was absent from school. I always warn you against your enemies and keep the child off the fire. Now let's move to the next. The next question is, he has been absent Monday. Since, for, from, to. We want the right answer now. Next. I haven't been to the mall
a long time. Since, for, from, of. He poured the tea, the mug, into, on, in, to. He has been, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम. Then next, my friend has been living in Canada 2 years. By, since, for या from. चलिए समझते हैं. He has been absent since Monday. क्योंकि मंडे यहां पर एक टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है. I haven't been to the mall. अब चूंकि a long time एक ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है, तो यहां आएगा for. He poured the tea. अब यहां राइट आंसर आएगा into the mug. क्योंकि जब कोई चीज ऐसे बाहर से अंदर की तरफ आती है तो हमें कहना पड़ता है into. Into इसका राइट आंसर है. He has been absent since Monday. कब से एब्सेंट है वो? मंडे से गायब है. एंड माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कैनेडा. अब चूंकि 2 years एक टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल के हमें लगाना पड़ता है फॉर. ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे. आई हैवंट बीन टू द मॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही poured द टी. pour मतलब उड़ेलना, ऐसे डालना. ही poured द टी इनटू द कप और मग. ही हैज बीन एब्सेंट since Monday, and my friend has been living in Canada for 2 years. Next की तरफ चलते हैं. He has been absent हमने देख लिया. Now we live. In, on, at or to मध्य प्रदेश. I was the cinema. In, on, at, to. We are going. In, on, at, or to. And the last, 35th. Who is the person? The picture. In, on, at, to. 31st तो हमने ऑलरेडी कर लिया है क्वेश्चन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल लिव. राइट आंसर इज इन मध्य प्रदेश. आई वॉज एट द सिनेमा यस्टरडे. वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे. एंड हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर? यहां आंसर आएगा इन. और आगे चलते हैं फटाफट. नाइस, इन, ऑन, एट, टू. नाइस टू मीट यू, ये तो हम सबको समझ में आता है ना. चलो नेक्स्ट. जया इज वेकेशन. वेकेशन मतलब छुट्टियां. तो जया इज इन वेकेशन, ऑन वेकेशन, एट वेकेशन या टू वेकेशन होता है. हमेशा होता है ऑन वेकेशन. जया इज ऑन वेकेशन. Look the flowers. Look in, look on, look at या look to. Right answer आएगा look at the flowers. Anju's birthday is July. In July, on July, at July या to July. The right answer is in July. And it's better to get a taxi if you're out alone. In, on, at या to. इसका आंसर आएगा at. अब क्यों होगा ऐसा? नाइस टू मीट यू तो आसान है, हम हमेशा बोलते हैं. वेकेशन के पहले हमेशा ऑन लगता है, ऑन वेकेशन. लुक एट हमेशा होता है लुक एट द फ्लावर्स. अंजूस बर्थडे इज इन जुलाई, क्योंकि किसी भी मंथ के पहले हम इन लगाते हैं. और इट्स बेटर टू गेट अ टैक्सी इफ यू आर आउट अलोन एट नाइट. अगर हम सामान्य रूप से रात की बात करते हैं तो एट लगेगा. किसी
पर्टिकुलर नाइट की बात करेंगे तो इन लगाना पड़ेगा। चलो ये भी ठीक हुआ। और देखते हैं, आई वेंट शिमला लास्ट समर। वी ईट स्वीट्स टुगेदर। द क्लास इज एट नाइट 9 AM. Where is Mona? She is school. And Lalit was standing. फटाफट बताइए। I went Shimla. अब ये जो लास्ट लिखा हुआ है, इसके हिसाब से इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है ना? तो अगर किसी वर्ड के पहले लास्ट लिखा आ जाए या नेक्स्ट लिखा आ जाए तो फिर हम आगे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहां कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट, वी ईट स्वीट टुगेदर एट दिवाली। एट दिवाली मतलब वो दिवाली का पूरा त्योहार, और दिवाली वाले दिन की बात होगी तब हम कहेंगे ऑन दिवाली डे। फिर द क्लास इज एट 9 AM ऑन मंडे मॉर्निंग्स, क्योंकि डेज के पहले ऑन लगता है। वेयर इज मोना? शी इज एट स्कूल होगा, वो कहां पर है? स्कूल में है, तो वहां एट स्कूल बोलते हैं। एंड ललित वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी हंग अ पिक्चर। हैंग का सेकेंड फॉर्म हंग अ पिक्चर द वॉल। There is something TV tonight. Write me soon. She is tall and I'll meet you there in, on, at or since. देखिए, शी हंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, क्योंकि पिक्चर वॉल से टच में होती है ना। फिर देर इज नथिंग हमेशा कहते हैं ऑन टेलीविजन। यस, राइट टू मी हमेशा किसी को लिखा जाता है तो राइट टू मी। शी इज टॉल विद लॉन्ग हेयर। लॉन्ग ब्लैक हेयर है ना, लॉन्ग हेयर यहां लगेगा विद, याद रखना। शी इज टॉल विद लॉन्ग ब्लैक हेयर, लंबे काले बाल के साथ वो एक लंबी लड़की है। एंड आई विल मीट यू देयर एट 6 o'clock शार्प। इसमें काम पहले से चलकर नहीं आ रहा है, हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहां लगेगा एट। फिर यहां समझ लीजिए, शी हंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, देयर इज नथिंग ऑन टीवी टुनाइट, राइट टू मी सून, she is tall with long black hair and I'll meet you there at 6 o'clock sharp. चलिए, अच्छा 51 नंबर भी हमारे पास है, इसको और समझ लेते हैं। The police are searching. A bird flew into the room window. This is imagination. अच्छा, ये फिर से आ गए हमारे सेंटेंसेस। चलिए, द पुलिस आर, पुलिस को हम प्लूरल मानते हैं, सर्चिंग फॉर द डेकॉइट्स। डेकॉइट्स मतलब डाकू। अ बर्ड फ्लू इनटू द रूम थ्रू अ विंडो। थ्रू का मतलब होता है किसी में से होकर, किसी में से गुजर कर। दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, हमने देख लिया था। एंड मिस्टर गुप्ता इज ऑन लीव फॉर अ वीक and finish this work by tomorrow. यहां by का मतलब है किसी दिए गए समय से पहले पहले। So finish this work by tomorrow morning. यहां थोड़ा समझ में आया क्या आपको? The police are searching for dacoits. A bird flew into the room through a window. खिड़की में से होकर आई। This is beyond my imagination. आसान है। Mr. Gupta is on leave for a week and
finish this work by tomorrow morning. Open your book, page 11. What is the time? Your watch. Be aware, pickpockets. He was born. He is blind. Now tell me the right answer. Open your book. On page 11 होता है हमेशा, at page नहीं होता है, on page होता है. What is the time? By your watch होता है हमेशा. Beware मतलब सावधान होना. Yes, pickpockets का मतलब होता है जेब कतरे. तो beware of होता है हमेशा. Beware of. He was born to a humble parents and he is blind in one eye. Open your book on page 11. What is the time? By your watch. Be aware of pickpockets. He was born to a humble parent and he is blind in one eye. Okay. अब नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रपोजिशन 3 एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज 2 थी. हमने बहुत सारे प्रपोजिशन को रिवाइज किया. इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए. आज के लिए इतना ही. फिर आपसे मुलाकात होगी कल. सारे टेक्निकल इश्यूज अब हम ठीक करके आएंगे ताकि शुरू होते के साथ हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दें. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. गुड बाय.